Question number 1, part C. Use trapezoidal rule. Also compare the result you obtain from trapezoidal rule with exact value. Integrations from 1 to 3. 1 divided by x dx n is equal to 6. देखिए यहाँ पे here a is equal to lower limits of integration, which is 1, and upper limit of integration is 3, so b is equal to 3. If of x is equal to 1 divided by x, if of x is equal to 1 divided by x, n is equal to 6. Now, trapezoidal rule. Trapezoidal rule for n is equal to 6 is integration from a to b. This is definite integral. F of x dx is equal to 1 divided by 2 del x. F of x naught plus last one f of x6 plus 2 times of the remaining values of f of x. So f of x1 plus f of x2 plus f of x3 plus f of x4 plus f of x5. ये हमारे पास है ट्रापेजॉइडल रूल. सो दिस इज इक्वेशन p. इसी को नाम हमने p का नाम दिया. अभी हमने ये तमाम वैल्यूज फाइंड करने हैं. f of naught, f of 1, f of 2, f of 3, f of 4, f of x5 और यहाँ पे लास्ट of f of x6. क्लियर? देखिए यहाँ पे since x n is equal to x naught plus n delta x, तो क्या आ जाएगा? f of x में ये वैल्यूज पुट करें तो this implies that f of x is equal to 1 divided by x. तो f of x में आ जाएगा xn is equal to 1 divided by xn. अभी यहाँ पे xn की जगह ये वैल्यू पुट करें x naught plus n delta x. So f of xn is equal to 1 divided by x naught plus n delta x. Say this is 1. अभी हमने यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू फाइंड करना है. तो देखिए यहाँ पे डेल्टा x इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाय n. तो क्या आ जाएगा? डेल्टा x इज इक्वल टू b की जगह 3 माइनस a की जगह 1 डिवाइड बाय n is 6. तो ये आ जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 6. सो डेल्टा x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3. अब ये वैल्यू और डेल्टा x की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें. पुट वैल्यू ऑफ x naught which is a1 and delta x which is 1 divided by 3 and equation 1. तो ये हमारे पास आ जाएगा f of x naught
इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x नॉट 1 प्लस n डेल्टा x एंड 1 डिवाइड बाय 3। तो क्या आ जाएगा? if of x naught is equal to 1 divided by 1 plus 1 divided by 3 and 12 say this is equation A। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन में यहाँ पे x है, यहाँ पे हमने n की वैल्यू पुट करना है फ्रॉम 0 to 6। क्लियर? So put n is equal to 0, put n is equal to 0, तो क्या आ जाएगा? if x naught is equal to 1 divided by 1 plus 1 divided by 3 and 2 0, तो ये आ जाएगा if x naught is equal to 1 divided by 1 plus 0, so we get if x naught is equal to 1 divided by 1, which is equal to 1. So if x naught is equal to 1, अभी हमने n की जगह 1 पुट करना है, put n is equal to 1, put n is equal to 1 in equation A, तो हमारे पास आ जाएगा if x square is equal to 1 divided by 1 plus 1 by 3 and 2 1, तो क्या आ जाएगा? 1 divided by 3 इसका LCM 3 plus 1, 3 यहाँ पे आ जाएगा, so 3 divided by 4, so if x is 3 divided by 4, अब इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर पे 3 divided by 4, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.75। so if x1 is equal to 7.5, put n is equal to 2 in equation 1A। देखिए x n और यहाँ पर भी हमारे पास है x n which is equal to 1 divided by 1 plus n into 1 divided by 3, तो क्या आ जाएगा? now put n is equal to 2 in equation number A, ये हमारे पास बन जाएगा if x2 is equal to 1 divided by 1 plus 1 divided by 3 and 2। अब इसका LCM ले तो ये आ जाएगा if x2 is equal to 1 divided by 3, इसका LCM 3 1s are 3 plus 2, तो ये आ जाएगा if x2 is equal to 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 divided by 5, 3 को 5 में डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.6। now put n is equal to 3 and equation A, put n is equal to 3 and equation A, तो हमारे पास आ जाएगा if x3 is equal to 1 divided by 1 plus 1 divided by 3 and 2 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 और 3 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया if x3 is equal to 1 divided by 1 plus 1 is 2, 1 को 2 भी डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा
0.5. Now for x n is equal to, हमने f of x3 भी हमने फाइंड किया, put n is equal to 4 and इक्वेशन a, तो हमारे पास आ जाएगा f of x4 is equal to 1 divided by 1 plus 1 divided by 3 into 4. अब यहाँ पे LCM लेंगे, इसका LCM आ जाएगा 3, इसका LCM 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 3 1 3 प्लस 4 1 4, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 is 7 डिवाइड बाय 3, तो ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा f of x4 is equal to 3 divided by 7. अब h को 3 को 7 में डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.428. इससे हमारे पास आ जाएगा f of x4 से 0.42857. Now put n is equal to 5 and equation a, put n is equal to 5, हमारे पास आ जाएगा f of x5 is equal to 1 divided by 1 plus 1 divided by 3 into 5. LCM ले, यहाँ पे again इसका LCM आ जाएगा 3, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3 प्लस 5 into 1 is 5, तो ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो 3 डिवाइड बाय 8 और ये आ जाएगा f of x5. अभी 3 को 8 में डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.375 और ये आ गया f of x5. अभी लास्ट वाला हमने f of x6 हमने फाइंड करना है, so put n is equal to 6 and equation a, हमारे पास आ जाएगा f of x6 is equal to 1 divided by 1 plus 1 divided by 3 and 2 6, तो ये 3 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 plus 2 which is equal to 1 divided by 3. अब 1 को 3 भी डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.333 और ये आ गई f of x6 की वैल्यू. अब ये तमाम वैल्यूज f of x0 से लेकर f of x6 तक ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर p में जो कि हमारे पास है ट्रेपेजॉइडल रूल, इसमें वैल्यूज पुट करें, डेल्टा x की जगह 1 डिवाइड बाय 3 और ये तमाम वैल्यूज, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. अब ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर p में पुट करें, पुट वैल्यूज एंड इक्वेशन p, तो देखिए 1 डिवाइड बाय 2, डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 3, f of x0 की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस f of x6 की वैल्यू हमारे पास है 0.333 plus 2 times of the remaining values mean f of x1 की वैल्यू हमारे पास है 0.75 plus f of x2 which is equal to 0.6 plus f of x3 which is 0.5 plus f of x4 which is 0.428
इन तमाम वैल्यूज को हमने प्लस करना है। देखिए कैलकुलेटर पे प्लस करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 1 are 1 divided by 2 and 2 3 is 6 एन दोनों को ऐड करके से हमारे पास आ जाएगा 1.33 और प्लस 2। ये तमाम नंबर कैलकुलेटर पे ऐड करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2.6535 अब इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 divided by 6 and 1.333 प्लस इससे हमारे पास आ जाएगा 5.307114। अब इन दोनों को ऐड करें तो 1 divided by 6 इन दोनों को ऐड करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 6.6401। अब इसी नंबर्स को 6.6401 को 6 से डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1.106 और ये आ गई इसकी approximate value by using Trapezoidal Rule. The answer is 1.106। अभी हमने s का एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड करना है क्योंकि क्वेश्चन में है also find compare your result with exact value। अभी हमने इसी फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पे अभी हमने इसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना है। देखिए डिफरेंट इंटीग्रल हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 1 divided by x dx और 1 divided by x का इंटीग्रेशन हमारे पास है log of x लिमिट फ्रॉम 1 to 3। अब यहाँ पे ये लिमिट्स अप्लाई करें अप्लाइंग लिमिट तो ये हमारे पास आ जाएगा अप्लाइंग लिमिट log of upper limit which is 3 minus log of lower limit which is 1। तो क्या आ जाएगा log of 3 ये कैलकुलेटर पे करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.1.099 minus log of 1 is 0 तो आ जाएगा 1.099। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एरर की फाइंड करना चाहते हैं तो इसका जो एरर होगा वो हम इस तरह फाइंड कर लेते हैं। एरर हम क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, यहाँ पे ये गिवन नहीं है कि आल्सो फाइंड द एरर। अगर आप एरर फाइंड करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू से ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड माइनस करें एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर आप ये भी फाइंड करना चाहते हैं तो ये इस तरह होगा एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये दोनों माइनस करें 1.10 से तो इससे हमारे पास आ जाएगा -0.008। और ये यहाँ तक बस हमारा आंसर एग्जैक्ट वैल्यू तक है। अगर आप दोनों फाइंड करना चाहते तो आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी definite integral range integrations from 0 to 2 1 plus x square square root dx n is equal to 6। तो देखिए यहाँ पे here a is equal to 0, b is equal to upper limits of
integration which is 2 f of x is equal to given function f of x is equal to y plus x square root x is equal to 6. Now trapezoidal rule for n is equal to 6 is now trapezoidal rule for n is equal to 6 is integration from a to b f of x bx is equal to 1 divided by 2 bx into f of x naught plus f of x 6 plus 2 times of the remaining value of f of x which is f of x1 plus f of x2 plus f of x3 plus f of x4 plus f of x5। तो क्या आ जाएगा? ये हमारे पास trapezoidal rule by trapezoidal rule for n is equal to 6 तो आ जाएगा ये, और इसी को हमने नाम दिया p का। अभी देखिए आप डेल्टा x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो डेल्टा x इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाय n, b की जगह 2 माइनस 0 डिवाइड बाय n इट इज इक्वल टू 6। तो क्या आ जाएगा? 2 डिवाइड बाय 6 which is equal to 1 divided by 3। डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 divided by 3। अभी हमने ये तमाम वैल्यूज फाइंड करना है। तो देखिए आपके सिंस xn सिंस xn is equal to x naught plus n डेल्टा x naught की जगह 0 तो आ जाएगा xn is equal to 0 plus n डेल्टा x की जगह 1 डिवाइड बाय 3। तो क्या आ जाएगा? xn is equal to n डिवाइड बाय 3। अभी हमारे पास जो फंक्शन है f of xn की वैल्यू हमारे पास आ गई n डिवाइड बाय 3। नाउ सिंस f of x गिवन फंक्शन हमारे पास है 1 प्लस x स्क्वायर रूट x की जगह x इनपुट करें तो ये आ जाएगा f of xn is equal to 1 plus xn square root। अभी xn की जगह n डिवाइड बाय 3 पुट करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस n डिवाइड बाय 3 और स्क्वायर रूट। तो क्या आ जाएगा? f of xn is equal to square root 1 plus n square divided by 9 से दिस इज 1। अभी हमने यहाँ से ये तमाम वैल्यूज फाइंड करना है। सो पुट n is equal to 0 1 2 3
4 5 और लास्ट वन 6, तो ये हमारा तमाम वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। पुट n इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 1, तो आ जाएगा इफ ऑफ x1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 स्क्वायर डिवाइड बाय 9 होल स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 1 प्लस 0 एंड स्क्वायर रूट। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट which is equal to 1. So if x1 is 1, put n is equal to 1 in equation number 1. देखिए यहाँ पे put n is equal to 1 and equation 1, तो हमारे पास आ जाएगा if x1 is equal to 1 plus 1 square divided by 9 square root, तो ये आ जाएगा 1 plus 1 divided by 9 square root। यहाँ पे LCM ले तो ये आ जाएगा 9, इसका LCM 9 1 9 plus 1, तो ये आ जाएगा 10 divided by 9 square root। If x1 is 10 divided by 9 square root, अब 10 को 9 पर डिवाइड करें और फिर इसका जो आंसर आ जाए इसका स्क्वायर रूट लें, तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 9, जो आंसर आ जाए इसका स्क्वायर रूट लें, तो ये इससे हमारे पास आ जाएगा 1.054। हमने दो वैल्यूज फाइंड किए, एक हमारे पास है इफ ऑफ x0, ये x0 है यहाँ पे, और एक इफ ऑफ x1, क्योंकि यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 0 पुट किया था, तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गए इफ ऑफ x0 एंड इफ ऑफ x1। पुट n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा इफ ऑफ x2 is equal to 1 plus 2 square divided by 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 square is 4, और 1 plus 4 divided by 9, इसका LCM ले तो 9 आ जाएगा, इसका LCM 9 1 9 plus 4, 9 और 4 को ऐड करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 13 डिवाइड बाय 9 स्क्वायर रूट। अभी 13 को 9 पर डिवाइड करें, जो आंसर आ जाए इसका स्क्वायर रूट भी ले, तो इससे हमारे पास आ जाएगा इफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 1.202। ठीक है, हमने इसकी वैल्यूज को राउंड भी किया 1.202। नाउ पुट n इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन 1, हमारे पास आ जाएगा इफ ऑफ x3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस n स्क्वायर 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 9, तो 1 प्लस 9 डिवाइड बाय 9 स्क्वायर रूट, तो ये 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। अभी कैलकुलेटर पे 2 स्क्वायर रूट फाइंड करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1.414 और ये f ऑफ x3 की वैल्यू। नाउ पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3, और n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो इन इक्वेशन 1 तो ये आ जाएगा इफ ऑफ x4
is equal to 1 plus 4 square divided by 9. तो क्या आ जाएगा? 4 square is 16, 1 plus 16 divided by 9 all square root. Taking LCM, तो इसका LCM हमारे पास आ जाएगा 9. तो 9 into 1 is 9 plus 16, ये आ जाएगा 25 divided by 9 square root. अब 25 को 9 पर डिवाइड करें और फिर इसका स्क्वायर रूट ले, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1.667. तो ये आ गई f of x4 की वैल्यू. नाउ पुट n is equal to 5 in इक्वेशन नंबर 1. तो हमारे पास आ जाएगा put n is equal to 5 and equation 1. तो ये हमारे पास आ जाएगा f of x5 is equal to square root 1 plus n की जगह 5 square divided by 9. तो ये आ जाएगा 1 plus 25 divided by 9 square root. अब यहाँ पे LCM ले, तो इसका LCM हमारे पास आ जाएगा 9. 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 9 plus 25. दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 34 divided by 9. अभी 34 को 9 पर डिवाइड करें और फिर जो आंसर आ जाए इसका स्क्वायर रूट ले, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1.944 और यह हमारे पास आ गई x5 की वैल्यू. लास्ट वन f of x6 हम डिफाइन करना है, तो पुट n is equal to 6 and इक्वेशन 1. तो हमारे पास आ जाएगा f of x6 is equal to square root 1 plus n की जगह 6 और 6 square divided by 9. तो आ जाएगा 1 plus 36 divided by 2. तो ये दोनों कैसे होता है यहाँ पे? तो 1 plus 5 1 plus 4, इससे हमारे पास आ जाएगा 5 square root. 5 square root ये हमारे पास इक्वल है 2.236, which is equal to 2.236. f of x6 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई. अब ये तमाम वैल्यू इक्वेशन p में पुट करें. पुट r वैल्यू and equation p and इक्वेशन p, तो हमारे पास आ जाएगा. देखिए आप इक्वेशन p हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx is equal to 1 divided by 2 del x हमारे पास इक्वल है 1 divided by 3 f of x naught की वैल्यू हमारे पास 1 एंड सो ऑन. ये तमाम वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर p में पुट करें. देखिए डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास है, डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास है 1 divided by 3 और पुट r वैल्यू एंड इक्वेशन p हमारे पास आ जाएगा 1 divided by 2 1 divided by 2 delta x की वैल्यू 1 divided by 3, so 1 divided by 3 and to f of x naught which is 1 plus f of x6 which is 2.236 plus 2 times of the remaining values f of x1 which is 1.667
1.414 plus f of x4 which is 1.667 plus f of x5 which is 1.944। अब ये तमाम वैल्यू प्लस करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा ये तमाम वैल्यू ऐड करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 1 डिवाइड बाय 2 and 3 and 6 एंड दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 3.236 प्लस 2 एंड 2 इससे हमारे पास आ जाएगा 7.281। तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 6 एंड 2 3.236 प्लस एंड दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 14.562। अब एन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 6 एंड दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 17.798। अब 17.798 को 6 पर डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2.9663 और यह आ गई इसकी एप्रोक्सीमेट वैल्यू means the value of the function f of x 3x from 0 to 2 तो ये हमारे पास इक्वल है 2.9663। अभी हमने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी हमने फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हमने फाइंड करना है। एग्जैक्ट वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में है कि also find the exact value and compare your result with the exact value। So exact value integration from 0 to 2 1 plus x square root 1 plus x square root d x। देखिए हमारे पास फार्मूला है स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट ये हमारे पास फार्मूला है which is equal to x into a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय और डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 sin हाइपरबोलिक इनवर्स x। ये हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x into a स्क्वायर प्लस x square root divided by 2 plus 1 divided by 2 sin hyperbolic inverse x। तो क्या आ जाएगा ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें एक की जगह यहाँ पे है 1 स्क्वायर तो ये हमारे पास आ जाएगा x की जगह x तो ये आ जाएगा x स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 sin हाइपरबोलिक इनवर्स x और साथ में ये लिमिट आ जाएगा लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2। अभी ये लिमिट्स अप्लाई करें अप्लाइंग लिमिट अप्लाइंग
लिमिट तो हमारे पास आ जाएगा अपर लिमिट से अप्लाई करें तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 2 1 प्लस 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस लोअर लिमिट which is 0 into 1 plus 0 whole square plus 1 divided by 2 sin hyperbolic inverse 2 minus sin hyperbolic inverse 0 तो क्या आ जाएगा 2 1 divided by 2 ये आ जाएगा 2 into 1 plus 4 minus ये आ जाएगा 0 plus 1 divided by 2 sin hyperbolic inverse 2 ये हमारे पास इक्वल है sin hyperbolic inverse ये हमारे पास इक्वल है 1.436 minus sin hyperbolic 0 is 0 तो ये आ जाएगा 1 divided by 2 ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 5 इनवर्स प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 1 divided by 2 into 1.4436 5 स्क्वायर रूट ये हमारे पास इक्वल है 2.236 प्लस ये इससे डिवाइड कर तो हमारे पास आ जाएगा 7218 अब इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2.9578 और ये आएगा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप इसका एरर फाइंड करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू से अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका एरर बस ये हमारे पास इसका कंसेप्ट